हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ Key.05 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਡੇ 3 ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, which of the following skills are known as primary skills? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਦੈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕਿੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਰੀਡਿੰਗ ਥਰੂ। ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਬੀ ਹੈ ਫੋਨਿਕ ਟੀਚਿੰਗ, ਸੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਬੁੱਕਸ, ਡੀ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬੁੱਕਸ ਓਨਲੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫੋਨਿਕ ਟੀਚਿੰਗ, ਫੋਨਿਕ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਫੋਨਿਕ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸਾਊਂਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਬੁੱਕਸ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। A B C, A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬਾਲ, C ਫॉर ਕੈਟ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਬੁੱਕਸ। ਪਿਕਚਰ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬਾਲ, C ਫॉर ਕੈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਪਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਹੈ, ਕੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰਸ ਕੀ ਹੈ A B C ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਪਲ, ਕੈਟ, ਬਨਾਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਿਕਚਰ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਟ ਬਣੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਐਪਲ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੈਂਗੋ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਰਾਫ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿਮਿੰਗ ਆਰ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਫॉर। ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ, ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਮੇਨ ਥੀਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 2-4 ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਥੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, की जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इन्हां दा एक प्रॉपर सीक्वेंस की है। देखो सब तो पहला बच्चा की है सुनना सीखता है, फिर वो की है बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, एंड लास्ट ते वो की है लिखना सीखता है। तो यही इहदा सीक्वेंस है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो अपने को डी ऑप्शन की है बिल्कुल करेक्ट है। यही इहदा की है सीक्वेंस है कि सब तो पहला बच्चा बोलना सीखता है, फिर बच्चा सब तो पहला बच्चा की है सुनना सीखता है, फिर बच्चा बोलना सीखता है, फिर बच्चा पढ़ना सीखता है। तो जो राइटिंग है वो सब तो की है कंपलैक्स स्किल मनी जाती है, इसलिए राइटिंग की है बच्चा सब तो लास्ट ते सीखता है। सो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखो, which technique of reading is used to look for a specific piece of information, कि रीडिंग दी केड़ी टाइप यूज की जाती है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लैन लई। लाइब्रेरी रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग या फिर ओरल रीडिंग। देखो लास्ट क्वेश्चन विच ही डिस्कस करके हटे हैं कि स्कैनिंग रीडिंग दी एहो जी टाइप है जिहदे विच आपां की है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड की है पूरे स्टोरी का, पूरे पैराग्राफ का की है इन्फॉर्मेशन लैन लिए इनू की है यूज़ करते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड का की है मीनिंग डिस्कस करते हैं या मीनिंग गेन करने की कोशिश करते हैं कि वर्ड टू वर्ड इस पूरी लाइन का, पूरे पैराग्राफ का की है स्पैसिफिक मीनिंग की बनता है। सो स्कैनिंग यानी सी ऑप्शन अपना की है बिल्कुल करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग केड़ी लिसनिंग होएगी? केयरफुली लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, क्यूरियोसिटी टू व्हाट इज सेड, टू जज द स्पीकर्स टोन या फिर केयरफुल फॉर इंटोनेशन। देखो इंटरैक्शन का मतलब यानी इंटरैक्टिव लिसनिंग यानी कि इंटरैक्शन हो रही है दो जनियां दे विच कि एक जना बोल रहा है, दूसरा की है रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर दूसरा बोल रहा है, पहला रिस्पॉन्ड कर रहा है, दोनों की है एक दूसरे को समझ भी रहे एक दूसरे की गल नूं ते रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सो ए ऑप्शन अपने को की होएगी सही होएगी कि केयरफुली लिसनिंग यानी एक दूसरे को ध्यान नाल की सुनना अते रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, इंटोनेशन वाला भी पॉइंट बिल्कुल गलत है, टोन जज भी नहीं करनी आपां इहदे विच इंटरैक्टिव लिसनिंग विच, एंड इहदे विच कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं है, जस्ट इहदे विच की है कि दो जान एक दूसरे को ध्यान नाल सुन रहे एक दूसरे की गल नूं ते रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, एक्सटेंसिव रीडिंग इज, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो केड़ी रीडिंग है? रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन है, रीडिंग फॉर प्लेजर है, रीडिंग टू नो द मीनिंग या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो एक है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक है इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव का मतलब है कि सिर्फ उपरों उपरों, एक्सटेंसिव का बेसिकली मतलब होंदा बाहरी तौर पर, है ना। सो एक्सटेंसिव का मतलब है कि आप सिर्फ उपरों उपरों रीड कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंटेंसिव का मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन लैन लिए पूरा डीपली पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ये तो बिल्कुल गलत होएगा क्योंकि ये तो की है इंटेंसिव रीडिंग है, पूछे आपन की गया एक्सटेंसिव रीडिंग एंड रीडिंग टू नो द मीनिंग, ये भी गलत होएगा। सो बी ऑप्शन अपने को जो है बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ प्लेजर लिए सिर्फ उपरों उपरों पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक प्लेजर लिए पढ़ रहे हैं, ना आप इन्फॉर्मेशन गेन करनी है ना अपन ओदा कोई मीनिंग जानने च इंटरस्ट है, आप सिर्फ उपरों उपरों पढ़ रहे हैं। सो बी ऑप्शन की है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखने लिए इंग्लिश विच की चीज़ इंपॉर्टेंट है, की इन्वॉल्व है। फर्स्ट है फ्लोरल लैंग्वेज, आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ओनली या फिर करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। देखो
सिर्फ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होनी जरूरी नहीं, ये थोड़ी है कि ਉਹਦੀ सिर्फ हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल है तो ਉਹਨੇ कुछ लिखिया ही नहीं विच, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ आइडियाज़ ही नहीं, ਉਹਨੇ बार बार ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ रिपीट किया होया है, या फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ लिखी हुई है जिन्हों का आपस च कोई की है तुक्की नहीं बन रही। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन तो बिल्कुल की है गलत है। फ्लोरल लैंग्वेज भी गलत है। फ्लोरल लैंग्वेज का बेसिकली मीनिंग है कि उन्हें बहुत अच्छे वर्ड्स अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है। यह इंपॉर्टेंट ज़रूर है बट सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है एक अच्छा पैराग्राफ लिखने लिए। अपने को बी ऑप्शन है आइडियाज़ प्रेजेंटेशन एंड कोहरेंस, कि जी आइडियाज़ की प्रेजेंटेशन है वो की होवे अच्छी होवे एंड एक दूसरे नाल की कोहरेंट होनी है, नहीं एक दूसरे नाल की वो रिलेटेड होन, कि जो फर्स्ट लाइन लिखी है जो सैकेंड लाइन लिखी है तो जो लास्ट लाइन लिखी है ये सारिया लाइन्स की आपस में की रिलेटेड होन ते रिलेट करके कि एक इन्हां दा मीनिंग निकलदा होवे। सो बी ऑप्शन अपने को की है बिल्कुल ठीक होएगा कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखने लिए किहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आइडियाज़ की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी ते उन्हां विच की है कोहरेंस होना, कि वो आपस में की है रिलेटेड होन इंटर रिलेटेड होन। सो बी ऑप्शन की अपने को बिल्कुल सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरल स्किल मीनस द स्किल ऑफ, कि ऑरल जो स्किल है ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੀ स्किल है, ਕਿਹੜੀ स्किल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑरल स्किल भी कह सकते हैं। देखो ऑरल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है सुनना लिसनिंग, एंड ओरल की है स्पीकिंग नाल है बोलना। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सो ऑरल स्किल का मतलब की है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो डी ऑप्शन अपना की है बिल्कुल करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, कि जो लैंग्वेज का सिमेंटिक एस्पेक्ट है वो किस स्किल नाल की है रिलेटेड है। देखो सिमेंटिक बेसिकली सिमेंटिक का मतलब है कि हरेक सेंटेंस दे विच जो वर्ड्स है उन्हां दा की मीनिंग होवे जो आपां नूं की समझ आ सके। सो स्पीकिंग नाल रिलेटेड है, रीडिंग नाल रिलेटेड है, या फिर लिसनिंग नाल, या फिर राइटिंग नाल रिलेटेड है। देखो जो स्पीकिंग स्किल है, स्पीकिंग यानी बोलना की है फोनिक कॉन्सैप्ट है, तो एक ही है फोनिक एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है। जो स्पीकिंग स्किल है ये लैंग्वेज दे फोनिक एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है। जो राइटिंग है एक ही है ग्राफिकल एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है। एंड जो रीडिंग है, रीडिंग विच आपां की करते हैं लिखी हुई चीज़ नूं पढ़ते हैं। सो जो रीडिंग है एक ही है फोनिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है, इनू कहते हैं। एंड जो सीमेंटिक एस्पेक्ट है वो कादे नाल रिलेटेड है, लिसनिंग नाल रिलेटेड है। सी ऑप्शन अपने लिए इस क्वेश्चन लिए की है सही होएगा, कि जो लिसनिंग स्किल है वो कादे नाल रिलेटेड है, सीमेंटिक एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है। स्पीकिंग कादे नाल रिलेटेड है, फोनिक एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है। राइटिंग जो है वो ग्राफिकल एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है, तो रीडिंग की है फोनिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट नाल रिलेटेड है, कि आप ग्राफिकली जो चीज़ लिखी हुई है उन्होंने आप फोनिक मैथड नाल रीड कर रहे हैं, साउंड्स नाल रिलेट करके रीड कर रहे हैं। तो सीमेंटिक एस्पेक्ट केड़ा होया, लिसनिंग स्किल हुई। सो सी ऑप्शन की है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग आर, इत्थे मिस प्रिंट हो गया 4 आएगा, कि जो रीडिंग दियाँ 4 डिफरेंट टाइप्स है वो केड़ियां केड़ियां। सो मैं थानू पहला भी दस्सिया सी, आपां पढ़ियां पिछे टाइप्स कुछ तां। एक है स्किमिंग का मतलब की है कि आपां पूरे पैराग्राफ नूं या स्टोरी नूं रीड कर रहे हैं, उहदा एक मेन थीम या सेंट्रल आइडिया जानने लिए। एक है स्कैनिंग का मतलब की है कि आप उस पूरी स्टोरी नूं या पैराग्राफ नूं की है लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड की है उहदा मीनिंग जानने लिए पढ़ रहे हैं। फिर एक है एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब की है कि आप सिर्फ उपरों पढ़ रहे हैं, प्लेजरली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग का मतलब की है कि आप पूरी की है डीपली पढ़ रहे हैं। सो 4 टाइप्स केड़ी हैं, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, एक्सटेंसिव है एंड इंटेंसिव। ये चारों की है रीडिंग दी की है टाइप है। सो ये चारों बी ऑप्शन विच है, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है एंड एक्सटेंसिव है। सो रीडिंग दी यही की है 4 टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्न बेस्ट। जो लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये चारों लैंग्वेज स्किल्स किहड़े तरीके नाल वधिया की है पढ़ाइयां जा सकती हैं।
if they are taught in an integrated manner। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਡਰਿਲਸ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਉਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਡਰਿਲਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰੂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਦੇਖੋ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਯਾਨੀ ਚਾਰੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਟੌਟ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਐਕੂਰੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ, ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪਿੰਗ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, है ना, बट जो लैंग्वेज लर्निंग है एक ये सारी स्किल बेस है कि देखो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी लैंग्वेज लर्निंग जो है इन्हां चारा स्किल्स ते ही डिपेंड करती है कि पहला बच्चा अच्छे तरीके नाल सुनना सीखदा है, फिर बोलना सीखदा है, फिर उन्होंने पढ़ना भी आ जाता है, तो फिर लिखना भी आ जाता है। तो आ जो बाकी एस्पैक्ट है लैंग्वेज लर्निंग दे, ग्रामर है, रूल्स है ना, वो सारिया चीज़ा की है इन्होंने चारों एस्पैक्ट्स विच की है आ जाती हैं, है ना। सो जो लैंग्वेज लर्निंग है ये की एक तरह की सारी की है स्किल्स के नाल रिलेटेड है। सो बी ऑप्शन अपना की है बिल्कुल सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट क्लास सेकंड शेयरिंग स्टोरीज, फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट इम्प्लाइंग जेस्टर्स वेयर एप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ डैश स्किल। कि जो क्लास सैकेंड दे बच्चे है वो की है स्टोरीज शेयर कर रहे हैं आपके फैमिली एक्सपीरियंस के नाल रिलेटेड की है स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, अलग अलग की है जेस्टर्स इंप्लाई करके शेयर कर रहे हैं। तो ये जो जेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं ये केड़ी स्किल होएगी, रीडिंग स्किल होएगी, राइटिंग स्किल होएगी, स्पीकिंग होएगी या फिर कोई भी नहीं होएगी। देखो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ो, क्वेश्चन विच ये है कि सैकेंड क्लास दे विच जो बच्चे है वो शेयर कर रहे हैं आपके एक्सपीरियंसिस, किस वे नाल शेयर कर रहे हैं अलग अलग जेस्टर्स नाल, तो वो केड़ी स्किल यूज़ कर रहे हैं। देखो रीडिंग जे बच्चा कुछ शेयर कर रहा है तो ओबवियसली वो आपके थॉट्स है, रीडिंग तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर जेस्टर्स की गल हो रही है तो राइटिंग दे विच तां जेस्टर्स नहीं आएंगे, राइटिंग दे विच की आएगा अलग अलग वो इमेजेस ड्रॉ कर रहा है, पिक्चर्स बना रहा है ना, इदा दी चीज़ आएगी, जेस्टर्स नहीं आएंगे। स्पीकिंग, सो सी ऑप्शन देखो जेस्टर्स जो है जो आप कुछ बोल रहे हैं, जो आप कुछ बोलते हैं ना उदों आप आपदे हत्थां दी मूवमेंट करते हैं, हत्थां दे नाल अलग अलग जेस्टर्स दिखाने हैं, आपदे अपने फेस एक्सप्रैशनस तो पता लगता है कि आप खुश होकर दस रहे हैं या उदास होकर दस रहे हैं या आपां नूं गुस्सा आ रहा है ना। सो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होएगी कि बच्चा जो है वो की है जो बोलता है उदों अलग अलग जेस्टर्स दिखाता है, तो बच्चा की है इस पूरी एक्टिविटी विच की है बोल के अलग अलग जेस्टर्स नाल की है आपकी जो फैमिली दी स्टोरी है आपके एक्सपीरियंसिस है वो की है प्रेजेंट कर रहा है। तो सी ऑप्शन की है बिल्कुल करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज द लास्ट क्वेश्चन है, who proposed LSRW order of teaching for learning English as a foreign language। कि इंग्लिश नू एज अ फॉरेन लैंग्वेज लर्न करन लई जो
LSRW जो सीक्वेंस है स्किल्स का वो किने प्रपोज किया सी या वो किने इन्वेंट किया सी कि सब तो पहला बच्चा लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग सीखता है, फिर रीडिंग एंड देन लास्ट ते की है राइटिंग सीखता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो टेक्नीक है, ये जो ऑर्डर है इन स्किल्स का, ये किने प्रपोज किया सी? E.C. किटसन ने, रॉबर्ट पॉल, J.A. ब्राइट या फिर P. ग्यूरी ने। सो इसका आंसर है सी, J.A. ब्राइट ने की है। ये जो मॉडल है या फिर ये जो ऑर्डर है स्किल्स का, एक ही है प्रपोज किया सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लियो कि जो LSRW जो स्किल्स का ऑर्डर है किने प्रपोज किया सी? J.A. ब्राइट ने। सो अज के सारे क्वेश्चंस इत्थे खत्म होंदे आ। उम्मीद करदी हां कि तुहानूं अज दा लैक्चर अच्छा लग्या होएगा ते इन्हां क्वेश्चंस दे थ्रू तुहाडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है सारा तुहानूं समझ लग गया होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड जिहड़े बच्चों ने अजे तक सबसक्राइब नहीं किया वो साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करियो। जे कोई कमी लगी होवे तो वो भी दसियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।